Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 10th. I am your biology teacher, Mrs. Mumtaz Sultan. We have already discussed two types of endocrine glands. These are pituitary gland and thyroid gland. Pituitary gland has two lobes, anterior lobe and posterior lobe. Anterior lobe secrete two types of hormones, somatotropin and thyroid stimulating hormone. Posterior lobe also secrete two types of hormones, vasopressin and oxytocin. Thyroid gland secrete two types of hormones, thyroxine and calcitonin. Calcitonin decreases the level of calcium ions in blood, and promote the absorption of calcium from blood into the bones. That's why the level of calcium in the blood decreases. Now, we will discuss other endocrine glands. The third one endocrine gland is parathyroid gland. Parathyroid gland. First of all, we will see the location of parathyroid gland. The posterior side of thyroid gland, it is located. This is thyroid gland. Thyroid gland is present below the larynx. It is butterfly shaped thyroid gland, and parathyroid glands are located posterior to thyroid glands. यानी thyroid gland के पीछे ये locate करते हैं, behind the thyroid gland. These are four in number, which are located posterior to thyroid gland. Parathyroid gland secrete a hormone called parathormone. Function of parathormone is it increases the level of calcium ions in blood. Calcitonin decreases the level of calcium ion in the blood, and parathyroid secrete a hormone parathormone, and parathormone increases the level of calcium ions in blood. Calcitonin and parathormone complement to each other and regulate the level of calcium ion in the blood. इस तरह दोनों एक डिक्रीज कर रहा है, दूसरा इंक्रीज कर रहा है. इस वजह से जो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल होता है ब्लड के अंदर, उसको रेगुलेट करते हैं ये दोनों. पैराथायराइड जो है पैराथार्मोन और दूसरा हार्मोन कैल्सिटोनियन, ये दोनों ब्लड का लेवल जो है उसको रेगुलेट करते हैं. वैसे तो नॉर्मल प्रोडक्शन तो ठीक है, लेकिन अगर ये नॉर्मल से ज्यादा हो तो क्या होगा? First of all, we will discuss overproduction. When there is increased production of parathormone, more than normal calcium ions are absorbed, more than normal, यानी normal से ज़्यादा calcium ions are absorbed from the bones and added into the blood, यानी ज़्यादा जो है calcium bones से निकल के blood में आ जाएगा. Consequently, the bones become brittle. इस वजह से bones क्या हो जाएंगी? Brittle हो जाएंगी, यानी भुरभुरी हो जाएंगी, उनमें से कैल्शियम निकल आया है. ये है ओवर प्रोडक्शन. यानी अगर पैराथार्मोन अपने नॉर्मल लेवल से ऊपर ज्यादा प्रोड्यूस होता है, अगर वो अपने नॉर्मल लेवल से कम प्रोड्यूस होता है, यानी डेफिशिएंसी, इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पैराथार्मोन, ब्लड कैल्शियम लेवल फॉल्स. इट लीड्स टू टेटनी व्हिच अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ मसल्स. इसकी वजह से डिजीज हो जाती है टेटनी, जिसकी वजह से ये जो है इफेक्ट करता है फंक्शन ऑफ मसल्स.
इज अ टाइप ऑफ टेटनी। अच्छा, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इसमें तो वो दोबारा रिलैक्स नहीं होते, ये इसी पोजीशन में रहता है और फॉर अ लॉन्ग टाइम। टेटनी में जो ये पोजीशन है ये इसी तरह रहती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये देखें, इस पोजीशन में ही रहता है, ये इसको सीधा नहीं कर सकते। ये दिस इज टेटनी। टेटनी इज मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन। Flexion movement of flexion is the contraction of muscles and bending of joints. This is called flexion, yani contraction of the wrist and ankle joints. Tetany क्या क्या होता है? Flexion of wrist and ankle joints. Muscle twitching, जैसे मसल्स का अपनी जगह पे फड़कना, जैसे आप कहते हैं आंख फड़क रही है तो वो भी मसल ट्विचिंग है। इसके बाद है क्रैम्प्स। क्रैम्प्स होता है मसल्स का पुल कर जाना, यानी मसल्स का खींच जाना। और ये क्रैम्प्स और टेटनी में यही डिफरेंस है, टेटनी फॉर अ लॉन्ग टाइम और क्रैम्प्स ये है जो मसल्स पुल हो जाते हैं, खींच जाते हैं, वो जो है वो फॉर अ शॉर्ट टाइम। एंड कन्वर्जन्स, यानी ये बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना, और इसको एपिलेप्सी भी कहते हैं, वो जो मिर्गी पड़ती है उसमें कहते हैं कन्वर्जन। इट इज ड्यू टू, ये क्यों हुआ? ड्यू टू रिलैक्सेशन क्यों नहीं हुई? यानी एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको दोबारा क्या होना चाहिए था? रिलैक्स। मूवमेंट्स तभी शो होती हैं जब हमारे स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि कैल्शियम जो है वो नहीं है, ब्लड के अंदर कम है, उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं मसल्स, लेकिन वो रिलैक्स नहीं होते। वो किस वजह से रिलैक्स होते हैं मसल्स? रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम चाहिए लेवल, विच मेक्स द नर्व्स को भी और मसल्स मोर एक्साइटेबल, और बार बार जो है वो एक्साइटेड हो जाती हैं, और बार बार क्या है, नर्व इम्पल्सेस, अगर नर्व है ये वाली है तो नर्व इम्पल्सेस जो है बार बार पास ऑन होती हैं, तो और इसी तरह मसल्स भी बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट we will discuss the next hormone, adrenal gland. Renal mean होता है kidneys. Adrenal gland. How many kidneys are present in our body? There are 2 kidneys, and that's why there are 2 adrenal glands. 2 adrenal glands are situated above 2 kidneys. Adrenal gland which is situated above the kidney. Now we will discuss the structure of adrenal gland. Each adrenal gland consists of 2 parts. This is outer part. Outer part is called adrenal cortex, and inner part is called adrenal medulla. This gland, अगर हम इस gland का structure देखें तो ये gland कितने parts पे consist करता है? 2 parts. Outer part is called adrenal cortex and inner part is called adrenal medulla. Adrenal medulla, hormones of adrenal medulla, it secretes a hormone known as epinephrine or adrenaline. Epinephrine or adrenaline. In response to stress, कोई भी stress होता है तो ये क्या चीज रिलीज करता है? ये हार्मोन रिलीज करता है जिसको कहते हैं एपिनेफ्रिन। मेडुला जो है, इनर पार्ट, epinephrine or adrenaline in response to stress. This is also called, this epinephrine or adrenaline, it is also called emergency hormone. Why it is emergency hormone? If it prepares our body to overcome emergency situation, it prepares our body to overcome emergency situations. Therefore, adrenaline is termed as an emergency hormone. आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसमें आपने पढ़ा था एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो प्रिपेयर करता है आवर बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन बाय रिलीजिंग दिस हार्मोन। Other functions of this emergency hormone: when a person experiences fear, anger, or anxiety, the rate and intensity of heartbeat increases, blood pressure increases. Heartbeat increase होगी तो blood pressure भी increase होगा. Blood flow to limbs. Limbs mean
arms and legs increases. ब्लड फ्लो टू एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में एलिमेंट्री कैनाल का कोई फंक्शन नहीं होता. ब्लड टू एलिमेंट्री कैनाल एंड स्किन इज रिड्यूस. सच चेंजेस प्रिपेयर द बॉडी टू फेस इमरजेंसी सिचुएशन. ये किसने प्रिपेयर किया? हार्मोन. और ये हार्मोन कौन सा है? एपिनेफ्रिन या एड्रीनालिन. और किसने ये सक्रीट किया? इनर पार्ट ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, एंड दिस इनर पार्ट इज कॉल्ड adrenal medulla. The second hormone secreted by the adrenal gland is called the adrenal cortex secretes many hormones called corticosteroid. Adrenal medulla, adrenal cortex also secrete many hormones, but the hormone which is important is called corticosteroid. This is called corticosteroid, which maintains the balance of salt and water in the blood. This also maintains the balance of salt and water in blood. Corticosteroid. Now, this gland is very important. This pancreas is very important. Why it is important? Because it and as well as exocrine. पीछे आपने जितने भी पढ़े ग्लैंड्स, 4 ग्लैंड्स पढ़े हैं, वो सारे एंडोक्राइन के तौर पे एक्ट करते हैं, लेकिन जो पेनक्रियास है ये दोनों का काम करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल ग्लैंड. दैट इज also called as a double. There are 2 main functions of pancreas. First, pancreas as exocrine gland. The major part of the pancreas is ducted gland. Ducted means exocrine. Major part of pancreas is ducted gland. Act as an exocrine. This portion, duct mean इनकी duct होगी. This portion secrete digestive enzyme through a duct into small intestine. You can see this major part of the pancreas is ducted gland. This portion secretes digestive enzymes through a duct into small intestine. Major portion. These secrete enzymes through a duct, pancreatic duct, into the small intestine. Pancreas as endocrine gland. Some portion, not major, some portion of the pancreas serve as ductless gland. Ductless means endocrine gland. Some portion of the pancreas. This portion contains a group of endocrine cells referred to as islets of Langerhans. Group of cells. These are group of cells. Blue color. These are group of cells, and these are called islets of Langerhans, which secrete hormones directly into the blood. Directly, they have no ducts. That's why they act as an endocrine glands. This pour their secretions directly into the blood. They have no ducts like this. Major portion of the pancreas is ducted gland. Hormones of islets of Langerhans. Endocrine glands release hormones, and they release hormones directly into the blood. They have no ducts. Islets of Langerhans secretes 2 hormones, that is insulin, very important, and second one is glucagon. Glucagon, जैसे आपको नाम से जाहिर हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकागोन. अब हम जब खाते हैं, हम बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, लेकिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है 1 ग्राम पर लीटर.
अब बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किधर जाता है? वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो किधर जाता है? वो इंसुलिन जो है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड के अंदर उसका लेवल जो है 1 ग्राम करके बाकी को लिवर में स्टोर कर देता है। और जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ये जो ग्लूकागोन है, ये पेनक्रियास ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज करता है और ये इट इन्फ्लुएंसेस द लिवर जो स्टोर ग्लूकोज था टू रिलीज ग्लूकोज इन ब्लड एंड ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइज हो जाता है कि हमने काफी देर कुछ खाया पिया नहीं है, जिसकी वजह से ब्लड का जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो फॉल कर गया। तो फिर क्या हुआ कि ग्लूकागोन ने लिवर से ग्लूकोज लिया और ब्लड के अंदर भेज दिया, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन दोबारा जो है वो 1 ग्राम/लीटर हो गई है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है? इट इन्फ्लुएंसेस द लिवर टू टेक एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। जो हमने इतना ज्यादा खाया, जो एक्सेस था वो उसने ब्लड से लिया और एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एंड ब्लड क्या किया? ब्लड ग्लूकोज लेवल जो था, अगर वैसे क्या है नॉर्मल है 1 ग्राम/लीटर, तो अगर फॉर एग्जांपल 1.5 हो गया तो जो या 2 ग्राम/लीटर हो गया, तो वो जो 1 ग्राम है उसको लेके कहाँ पे स्टोर कर देगा? लिवर में। और जब अगर फॉल हुआ लेवल हमारे ब्लड के अंदर के हमने काफी देर ना खाया, तो फिर ग्लूकागोन उस जो स्टोर होगा लिवर के अंदर ग्लूकोज उसको स्क्रीट करेगा ब्लड के अंदर और हमारा दोबारा से लेवल जो है वो ठीक हो जाएगा। जैसे अगर 1 से कम हो गया है, 0.5 हो गया है, तो ये दोबारा उसको राइज कर देगा। ग्लूकागोन का ये फंक्शन है। दोनों का ऑपोजिट इंसुलिन, ग्लूकागोन क्या करता है? ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज्यादा करता है, यानी नॉर्मल कर देता है, और इंसुलिन उसको क्या कर देता है? कम करता है। कम भी जो नॉर्मल है 1 ग्राम, अगर उससे ज्यादा हो गया है 1 ग्राम से, तो उसको 1 ग्राम दोबारा ले आता है, यानी होम्योस्टेसिस। Deficiency of insulin. If a person's pancreas does not make normal quantity of insulin, अगर इंसुलिन नहीं बनाता तो वो जो ग्लूकोज को लेके लिवर में स्टोर करता है तो वो स्टोर नहीं होगा। फिर क्या होगा? वो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन राइजेस, तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो राइज हो जाती है और फिर वो जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो थ्रू यूरिन जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, स्टोर नहीं होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इस तरह के जो जिनमें डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन, उनको भूख बहुत जल्दी लगती है एंड द पर्सन सफर्स फ्रॉम, और जो डिजीज हो जाती है उसको क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलिटस। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज, लॉस ऑफ वेट, मीन के जितना भी स्टोर ग्लूकोज है उसके अलावा जो हमारे फैट्स स्टोर थे सारे यूज हो रहे हैं, बॉडी यूज कर रही है, क्योंकि स्टोरेज के लिए इंसुलिन था, इंसुलिन ने ये काम करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से स्टोर नहीं हो रहा बल्कि वो लॉस हो रहा है थ्रू यूरिन। तो फिर क्या होगा कि बॉडी जितने भी स्टोर हमारे अंदर बॉडी के अंदर थे, फैट्स थे, सबको जो है वो कर दिया, ब्लड में ले आया कि ब्लड का जो लेवल है वो नॉर्मल किया जाए। तो उससे क्या होगा? लॉस ऑफ वेट, यानी स्टोरेज कुछ भी नहीं हो रहा, फैट्स भी ना नहीं हो रहे स्टोर, तो इस वजह से क्या होगा? लॉस ऑफ वेट। और दूसरा होगा वीकनिंग ऑफ मसल्स, और मसल्स भी वीक हो जाएंगे। अच्छा, जब नहीं मिलता, फैट्स भी सारे क्या हो गए? डिसॉल्व हो गए। पहले तो सबसे पहले तो ग्लूकोज होता है जो मेन होता है, बेसिक एनर्जी जो जिससे लेते हैं, हमारी बॉडी लेती है, वो तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी ग्लूकोज है। ग्लूकोज नहीं है तो फिर वो किससे लेते हैं? फैट से। और फैट्स नहीं है तो फिर वो यूज करना शुरू कर देते हैं मसल्स की प्रोटीन, मसल्स भी वीक हो जाते हैं। इसके अलावा मसल्स वीक होने की वजह से टायर्डनेस फील होती है, थकावट फील होना शुरू हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट है इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रीटमेंट जो है इसकी इंसुलिन क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो इंसुलिन एक्सट्रैक्ट की जाती थी फ्रॉम एनिमल, वाज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, बट नाउ ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से किया जाता है, इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अवेलेबल नाउ। दिस इंसुलिन इज अवेलेबल विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया थ्रू, कौन से प्रोसेस के जरिए? बैक्टीरिया से बनाते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल in chapter
biotechnology, inshallah. Now we will check. पहले सबसे पहले कुछ भी खाए बगैर आफ्टर 8 to 10 आवर्स फास्ट, यानी सुबह उठना है, आपने कुछ भी नहीं खाना और जाके ब्लड देना है, और फिर आपने उसकी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन देखनी है जो टेस्ट आएगा। तो वो अगर वो 70 to 99 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर हो तो वो नॉर्मल है, यानी ब्लड इतने में इतना शुगर होगी, 99 मिलीग्राम होगी पर 100 मिलीलीटर ब्लड में, तो वो नॉर्मल है। और फ्रॉम 100 to 125 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर है तो प्री डायबिटिक है। अभी डायबिटीज नहीं हुई लेकिन चांसेस हैं डायबिटीज होने के। अगर 126 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर एंड अबव है तो वो क्या है, अब ये 126 यानी 125 से अबव जाएगा तो वो क्या हो गया, कंफर्म डायबिटिक है। इसके बाद आपने 8 to 10 आवर्स फास्ट के बाद आपने ब्लड दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी ड्रिंक ले लें, ग्लूकोज ड्रिंक लें, और 2 आवर्स आफ्टर 75 ग्राम ग्लूकोज ड्रिंक, तो 2 आवर्स के बाद फिर आपने ये खा के मतलब ड्रिंक पी के फिर आपने 2 घंटों के बाद ब्लड देना है। और उसमें जारी बात है आपने ग्लूकोज पी लिया है तो लेवल तो हाई होगा, लेकिन वो लेवल कितना हाई हो जाना चाहिए, 140 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर है तो वो नॉर्मल है, 140 to 200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर है तो प्री डायबिटिक है, यानी डायबिटिक होने का खतरा है। और अगर 200 मिलीग्राम से अबव हो गया है पर 100 मिलीलीटर तो वो कंफर्म डायबिटिक है। नेक्स्ट, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, बीजीसी टेस्ट आप कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। बीजीसी टेस्ट क्या चीज है? बीजीसी टेस्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने पहले फास्ट करना है 8 to 10, यानी रात को सोने के बाद सुबह दे दें तो ये फास्ट ही होता है, और उसके बाद आपने क्या करना है, ड्रिंक लेना है, और फिर 2 घंटों के बाद आपने दोबारा ब्लड देना है। So the amount of glucose in blood is measured by this test, यानी BG test, BGC, blood glucose concentration. It is used to diagnose, ये किस लिए टेस्ट हो रहा है, to use to diagnose diabetes. Blood glucose may be measured on fasting basis, यानी हम फास्टिंग के बाद ब्लड देंगे, collected after an 8 to 10 hours fast. रैंडमली मतलब एनी टाइम आप सुबह दे सकते हैं, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, आप 8 बजे भी दे सकते हैं, 7 बजे भी दे सकते हैं, 9 बजे भी, एंड आफ्टर अ मील यानी खाने के बाद द रिजल्ट ऑफ सम ये वाले टेस्ट, बीजीसी टेस्ट आर गिवन हियर, दीज आर रिजल्ट्स ऑफ दिस टेस्ट. Last endocrine gland is gonad. Testes, which are present only in male, and ovaries, which are present only in female, are these are the ovaries, reproductive organ, and testes are reproductive organs which are present in male, and ovaries are present in female. These are collectively called gonads. Simply we can say gonads. In addition to producing gametes, gonads also secrete, यानी एक तो ये gametes बनाते हैं जो इनका मेन फंक्शन है, गैमीट्स बनाते हैं, जैसे टेस्टिस जो हैं स्पर्म बनाएंगे, और ये जो है ये ओवरीज एग्स बनाएंगी, ये तो इनका मेन फंक्शन है। इसके साथ साथ ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं जिसको क्या कहते हैं, सेक्स हार्मोन्स. टेस्टिस सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन which is responsible for the development of male secondary sex character such as growth of hair on face and coarseness of voice, यानी आवाज का भारी हो जाना. Next, ovaries also secrete hormones. These hormones are called estrogen and progesterone, which are responsible for the development of female secondary sex characters such as development of breast.
आपने ग्लैंड्स पढ़े, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में 6 ग्लैंड्स पढ़े. First is pituitary gland, second one is thyroid gland, third is parathyroid gland, fourth is pancreas, fourth is adrenal gland, fifth one is pancreas, and sixth is gonad. Your assignment is dash increases the rate of reabsorption of water from nephrons. Write down the name of hormone. During summer, the urine output is low due to increased what? Thank you.